something when we talk about the arrangement of atoms. We all understand that carbon has four groups, one, two, three, and four groups attached around it. Now, on a piece of paper, we always draw this bond angle to be 90 degrees. But in reality, we all know that each bond angle here between 1 and 4, between 4 and 3, between 2 and 3, and between 3 and 1, between 2 and 4. So on paper, it looks that these bond angles, this 180-degree bond angles, they are different from these bond angles. But in reality, all bonds, they are having a same bond angle, and that is 109.28. So this is the exact bond angle between 1, 2, 3, and 4, between 1, 2, and even 1 and 3. So when I talk about why I am putting so much stress on this thing is because when we talk about the interchange of bonds, okay, interchange of bonds का मतलब 1 को तोड़ा 3 की जगह पे लगाया और 3 को तोड़ा 1 की जगह पे लगाया. If I interchange the position of 1 and 3, and if I interchange the position of 2 and 3, it is the same thing. तो सभी बच्चे यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे. Stereochemistry में particularly when we discuss many reactions, so there we will be talking about the interchange of bonds. Then you should be very clear on this point that interchange between 2 and 3 and interchange between 1 and 3, they are one and the same thing. These are not different. 1 और 3 का इंटरचेंज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने पहले 1 2 को किया और फिर 2 3 को किया, तब यानी कि 1 से 3 में जाने में 2 इंटरचेंज होंगे. Because this is something which is a very common mistakes which a first year students particularly they do. Okay, so here when I talk about the interchange in the positions, the interchange of 1 and 2 and 1 and 3, they are the same thing. They are not different at all. Okay, because bond angle between all these groups is same. एक और 3 के बीच में 109 से डबल बॉन्ड एंगल नहीं है. Bond 1 and bond 3, they are also at 109, and bond 1 and bond 2, they are also at 109. So this is one thing. So in stereochemistry, as I told you, first, this is a chemistry of arrangement of atom in space. Arrangement of atoms in space. Okay. Secondly, when I talk about stereochemistry, I've heard these two terms. One is conformations and the other is configuration. So can anyone tell me these two terms, the conformation and configuration, they are same or they are different? And if they are different, how they are different? Please raise your hand, those who know the answer. Conformation and configuration. Yes, anybody else? अगर अलग अलग नहीं पता, एक भी मालूम है, कुछ मालूम है इसके बारे में तो बताओ. Anybody who knows? फरदीन क्या हुआ? हैंड रेज करके हैंड डाउन कर लिया. What happened? Yes, anybody in the class? Arikta? Yes, ma'am.
हाँ जी, Ma'am, conformation is like when a molecule can rotate and change its shape. So, I mean, that is conformation. And configuration takes place when, like, in a molecule, like the atoms will change their position. So, like, their configuration changes that ways. Um, uh, so, yeah. let me just give you an example. 4 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि या जैसे बच्चे खेलते हैं, 4 बच्चे एक सर्कल बना के बैठे हैं, लेट अस कीप इट मोर सिंपल, एंड आई जस्ट आस्क देम टू move move to their adjacent position. Each one is moving to their adjacent position. जैसे राउंड घूम गए, जैसे आपका फैन है, फैन के ब्लेड्स जब आप when you turn on the fan it rotates, the blades of the fan they rotate. So this type of change in position, is it conformation or configuration? This is a change in position. So this is a conformation change or a configuration change. The change in the position of the blades or the change in the position of the children. Either of these two examples. Chandar. Yes, ma'am. हाँ जी. Ma'am, I don't have any idea about it. No idea. Okay. Deepak. No idea. Kashish. Yes. कुछ आइडिया है कि फैन के ब्लेड, जब आप फैन स्विच ऑन करते हो और फैन के ब्लेड्स घूमते हैं, तो दिस इज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज और अ कॉन्फिगरेशनल चेंज? No idea. No idea. Okay. So Ma'am, confirmation change. this is the confirmation change. Yes, Arikta. Very good. So let me just draw one figure here. This is a tetrahedral carbon. Isn't it look like a ceiling fan where this is your rod and these are the 3 blades which are attached along this ceiling fan. Now if you keep this rod fixed and you rotate these, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया, यहाँ से पकड़ा इसको मैंने। बच्चे आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं सिचुएशन कि उसको मैंने यहाँ से होल्ड किया, हाथ में पकड़ के लटका लिया, और फिर उसके बाद नीचे ये जो 3 ब्लेड्स नीचे लटक रहे हैं, जैसे आपका फैन होता है एग्जैक्टली वैसा ही, इसको रोटेट किया यहाँ पे ऊपर की स्टेम से, जैसे हम लोग फिरकी घुमाते हैं, ठीक है, यहां से पकड़ा और यहां से इसको रोटेट किया. सो व्हाट हैपेंस इज, इफ दीज आर द 3 ब्लेड्स A, B and C, I'm so sorry. So if these are the 3 blades which are attached to this stem S, and if we are rotating these 3, the position of A with respect to B and with respect to C, it is not changing. ठीक है, जैसे 4 बच्चे मैंने आपको बोला, मान लिया ये 4 बच्चे यहाँ पे सर्कल में बैठे थे और इन चारों को मैंने वो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, डी ए की जगह आया, ए बी की जगह आया, बी सी की जगह आया और सी डी की जगह आया. बट इफ यू सी, सो द न्यू सिचुएशन इज ए बी सी and D. Okay, this is how they are sitting now. So what happened? A was earlier in between B and D, and still now when I have changed the position, A is still between B and D. So those changes which do not result in the change in the respective position with the other group. Do you understand? वो चेंज जब हम कोई रोटेशन करते हैं तो उनकी बाकी जो ग्रुप्स हैं
उनके साथ उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंज. ओके, सो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आर दोज चेंजेस where the respective position is not changing. So if in terms of chemistry, if I say I have a carbon-carbon bond, okay, so let me just take the ethane molecule, and if I take this bond as the stem or as the rod of the fan, okay, I'm holding this carbon. इस कार्बन को मैंने सीलिंग मान लिया, इसको स्टेम मान लिया और इसको रोटेट करना शुरू किया, तो क्या होगा? ये मेरा फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड. बच्चे क्या चीज ये, क्या ये सभी लोग, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए. अगर आप अपने आप को 3 डायमेंशनली इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो यू विल नॉट बी एंड you will not be able to understand the stereochemical aspects. So what I'm trying to convey you, is it clear to all? Please raise your hand if it is clear. What about others? बेटा कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो पूछो. बबीता, दीपक, फरदीन, कशिश, लोकेश, प्रांजल, विशाखा. What about these 5 students? Babita, are you there? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. So why have you not raised your hand? Are you listening? हाँ बोलो बच्चे. व्हाइट बोर्ड ओपन है ना, तो फिर हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं है इधर. नीचे में. अच्छा अच्छा, ओके. और बट अबाउट दीपक, कशिश, लोकेश एंड प्रांजल, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है बेटा? दीपक. हाँ जी. व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं होता वो दोबारा से. क्या? व्हाइट बोर्ड ओपन होने में टाइम लगता है थोड़ा. नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है, क्या आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है. आ रही है. लोकेश. लोकेश तेवतिया. लोकेश. प्रांत. यस मैम. समझ में आ रहा है? यस मैम. बबीता, लोकेश का नाम नोट करिए. गरिमा. यस मैम. हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? यस मैम. आपसे एक क्वेश्चन पूछो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो गरिमा? यस मैम. Okay. I have just now, I have related your conformational isomers with something. What is that? मैम फैन. Ceiling fan. Okay. यस मैम. So here, when if I just paint three blades of the fan in different colors, say one is red, one is green, and the other one is blue, and I put the green between red and blue, and if I rotate my fan 100 times, will the position of the green changes or it will remain the same? Please put your hands down, students. हाँ जी गरिमा. मैम रेड और ब्लू के रिस्पेक्ट में तो वो वही रहेगी ना. Good. So this is something which is known as conformation. Likewise, I have given you the example where if I take
the carbon-carbon bond as the sealing rod. नीचे लिखा हमने, तो इस कार्बन के साथ अपने 3 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के साथ अपने 3 बॉन्ड्स हैं. नाउ इफ आई टेक दिस थिंग एज माय rod of the fan and if I rotate this, okay, so these 3 bonds, they are going to rotate, and this is fixed, this is not moving, okay, because I am holding it and I am rotating through this bond. So if I rotate through this bond, ये bond यहाँ पे इस position पे इस कार्बन के साथ ये जो पोजीशन है, ये तो यहीं पे सिर्फ गोल गोल घूम रहा है ना. जैसे आपका, मैंने आपको टॉप का एग्जांपल दिया, जो आपके स्पिनिंग टॉप्स होते हैं, उसका आप टॉप के ऊपर यहां से आप इसको होल्ड कर रहे हो और इधर से घुमा रहे हो, इस बॉन्ड को घुमा रहे हो, तो ये 3 बॉन्ड नहीं उन पे इंपैक्ट पड़ेगा. ओके, द ओनली थिंग विच इज इंपैक्टेड इज दीज 3 बॉन्ड्स, सो दे विल रोटेट इन दी क्लॉकवाइज और दी एंटी क्लॉकवाइज. जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया है तो यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करेगा. दिस इज वन थिंग. सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स. Conformational isomers. Next is, if I have a situation A, B, X and Y, rotating along this bond will give me the conformational isomers or conformers. But if I want to interchange the position of X and Y, means I do not want to stay them in the original position in space. If I interchange the position, means A, B, Y and X here like this. This means I have changed the position. X की पोजीशन पे Y आ गया, Y की पोजीशन पे X आ गया. So this type of interchange in the position, क्योंकि अब जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो रोटेट करने पे B के बाद Y है, Y के बाद X है. इस पोजीशन में B के बाद X था, X के बाद Y था. Okay, so here if I interchange, after interchange, what I am getting is I am getting the configurational isomers. So I am getting the configurational isomers. Now the basic difference between a conformer or a conformational isomer and the configurational isomer is, here the conformational isomers, they are obtained by rotation of bonds or flipping of bonds. Okay, so if I rotate, so how do you get conformers? By rotation. जैसे अभी हमने आपको इथेन का एग्जाम्पल दिया, by rotation of bonds. आप bonds को जितना मर्जी रोटेट करते रहो, उससे किसी की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती. और by flipping of bonds. Flipping of bonds. Now flipping of bonds means what? Sometimes what happens is the rotation is hindered because of the rigidity in the structure. For example, आपने सभी ने क्लास 11-12 में पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन के हमने 2 कॉन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़े हैं, चेयर एंड बोट. पढ़े हैं बेटा? Yes, ma'am. So here when I say these are the conformational isomer, और एक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं. ठीक है, ये सभी जितने भी बॉन्ड्स हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. अगर मैं एक बॉन्ड को सीलिंग फैन की रॉड मान लूं और इसको रोटेट करना शुरू कर दूं तो क्या होगा?
इसने एक हाथ इसका पकड़ा है, मान लिया इसके, इमेजिन करते हैं कि ये दो चीजें, दो स्टेम्स और हैं जो खाली हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा ये स्टेम भी इधर मूव करना शुरू कर देगी ना, क्योंकि ये पूरे बॉन्ड्स इधर मूव करते हैं. कैन यू विजुअलाइज द सिचुएशन स्टूडेंट्स? आंसर मी इन यस और नो. मैम कैन यू रिपीट इट वंस हाँ अगेन? ठीक है, देखो तुम्हारा ये एक साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है जहां पे हर कार्बन का एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक, इसको इमेजिन करते हैं कि 6 स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिंगर रिंगर रोजेस खेल रहे हैं. सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. अगर मैं अब क्या करती हूँ, एक बच्चे का हाथ पकड़ के इसको ऐसे घुमाना शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन में, यूं, तो क्या होगा? ये बच्चा पूरा घूमेगा ना, क्योंकि ये वाला हाथ हमने घुमाना शुरू किया. जब ये पूरा घूमेगा तो इसका एक बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के साथ है, ये अपने साथ इसको भी लेके घूमेगा, फिर ऐसे ये इसको लेके घूमेगा और ये इसको लेके घूमेगा. क्या ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. What about others? Okay, so such type of bonds where the rotation is not allowed. अब यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सारे आपस में 6 के 6 बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, इस टाइप की सर्कुलर मोशन को रेजिस्ट करते हैं. रेजिस्ट करते हैं, इसका मतलब द बॉन्ड्स, द रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट अलाउड. मीन्स, so when I say rotation of bonds is hindered or not allowed, that means how to get the confirmation. Then what is the other alternative a molecule has? अब molecule मालूम है कि हम अपने bonds को rotate नहीं कर सकते. रोटेट नहीं कर सकते इसका मतलब, लेकिन रिंगर रिंगर रोजेस में बच्चे खड़े भी हो सकते हैं और बच्चे बैठ भी सकते हैं. ठीक, हाथ पकड़े पकड़े जो 6 स्टूडेंट अपने आपस में सर्कल बना रखा है, उसमें से कोई एक स्टूडेंट अगर खड़ा होना चाहे, कोई बच्चा खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो सकता है ना. तो क्या होगा, हाथ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये और ये बच्चे के हाथ ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये बच्चा खड़ा होना चाहता है. ठीक है, सो सिमिलरली अगर ये बच्चा भी खड़ा होना चाहता है तो क्या होगा, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ भी ऊपर की तरफ चला जाएगा. सो such situations where the rotation of bonds is hindered or the bonds are rigid in rotation, in such situations the flipping of bonds is allowed. flip करना मतलब ऊपर नीचे करना, ऊपर कर दिया नीचे कर दिया. तो जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन का स्कूल लेवल पे पढ़ा है कि साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन का अगर मैं ये बॉन्ड ऊपर कर दूं और ये बॉन्ड ऊपर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्फर्मेशन आ जाएगी. यस और नो भरत? Ma'am, very sorry. I just joined. I was I having know you network. have joined late. Yes, ma'am. So I don't know. Sorry. दीपक? यस मैम. हाँ जी बेटा, समझ में आया बात? यस मैम. क्या समझ में आया? अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास को कि चेयर थोड़ा बहुत कॉन्फर्मेशन कैसे बने, बताइए. मैम यहाँ पे बॉन्ड्स का जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये फ्लिपिंग ऑफ बॉन्ड्स हो गया था. जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो उसे मतलब मतलब जो भी ये स्ट्रक्चर बना है ये बन गया था.
देखो बच्चे, जब हम बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ बॉन्ड अलाउड है, इसका मतलब एक तुम्हारे पास एक पेपर है जिसके ये 6 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अब इस पेपर का ये कॉर्नर मैंने पकड़ा और ये कॉर्नर मैंने पकड़ लिया और ये दोनों कॉर्नर्स पकड़ के ऊपर उठा दिए, तो ऊपर तो उठ जाएगा ना। इसको मैं ऊपर उठा दूं तो ये चारों तो प्लेन में रह गए, इनको तो मैंने नहीं छेड़ा, तो ये चारों रह गए ऐसे। ये ऊपर उठ गया और ये ऊपर उठ गया। जब ये ऊपर उठा तो ये बन गया, ये ऊपर उठा तो ये। वेरी बैड ड्राइंग। सो 1 सेकेंड, जब यहां पे इसको ऊपर उठाया तो हमारा ये आ गया, ये आपके नीचे का प्लेन था, ये नीचे के चारों बॉन्ड थे, और जब इसको ऊपर उठाया तो यहाँ पे आ गया। सो दिस गिव्स मी द boat conformation. Similarly, what I can do is I can push this up and I can push this bond down. If I'm pushing this up and pushing this down to the formation of the chair conformation. So now do you understand why are we getting boat and chair and how are we getting boat and chair? क्या ये बात समझ में आती है बेटा सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So here this type of, in the conformational isomers, so far we have understood in the conformational isomers the rotation of bonds is allowed. जैसे जो आपके जितने भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं उनमें, इन सभी में कॉन्फर्मेशनल आइसोमर बनते हैं, ठीक है। आप सीलिंग फैन को कितना भी रोटेट कर सकते हो, 1 डिग्री भी कर, 360 डिग्रीज भी कर सकते हो, 200 डिग्रीज भी कर सकते हो, और 250 डिग्रीज भी कर सकते हो, 250.1 डिग्री भी कर सकते हो. So that means when I talk about the rotation of bonds, I have the possibility of formation of infinite number of rotational isomers. Now is that clear? So a molecule can have infinite number of rotational isomers. Okay. So number of rotational isomers is not fixed कि हमारा तो 2 ही बन सकते हैं, या जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन में देखा चेयर और बोट, ये बच्चे ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं कि आपने इसको उठाया तो पूरा उठा दिया. मैं ऐसा भी तो कर सकती थी कि इसको सिर्फ 1 डिग्री उठाया और इसको 1 डिग्री गिरा दिया, या इसको 1.1 डिग्री ऊपर किया और इसको 1.1 डिग्री नीचे किया. All these are possible. Okay, so you can have infinite number of rotational isomers, whereas when we talk about the configurational isomers, in case of configurational isomers, how many configurational isomers are possible? That depends on number of chiral carbons we have. Chirality हम लोग करेंगे next period में. So as of now, when I talk about the configurational isomers, as I have told you, if I have one carbon which has got 4 different groups attached around it, A, B, X and Y. If I want to change their position in space with respect to each other, ठीक है, conformational isomers में I am not changing the position with respect to each other.
आई एम ओनली शिफ्टिंग, कि आपने शिफ्ट कर दिया सिर्फ उनको अपनी पोजीशन से, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर एट द सेम पोजीशन. In case of configurational isomer, if I want to change the position in space with respect to each other, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वी आर चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. Okay, it is not only about the changing in position in space. So this is done only when you break this bond. अब आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड भी तोड़ना है, फिर इस x को आप y की जगह लगा दोगे, y को x की जगह लगा दोगे. Okay, so I have interchanged the position. Clear? Similarly, it is not that what you are seeing on a piece of paper, x and y can be interchanged. You can also interchange b and y. You can also interchange x and a. You can also interchange x and b. Okay? Any interchange is allowed because everything is at 109.28. Clear? So when I say every interchange is allowed, this is one interchange in the position and this gives rise to the configurational isomer. तो जैसे ही हम एक इंटरचेंज करते हैं हमें क्या मिल जाता है, एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर मिलता है. ओके, तो यहां से अगर मैंने x और y में इंटरचेंज किया तो a, b, y एंड x, x की जगह y और y की जगह x आ गया, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर. ओके, now at this point I want to give you one more very important understanding is, if you have this type of a situation where we are talking about the one carbon system doing one interchange, give me the configurational isomer, and the second interchange gives back the original compound. But this is very, very important. First interchange या one interchange in position gives rise to the configurational isomer. In one carbon system, if I carry out one more interchange in the position, okay, so that gives rise to the original compound. इसका मतलब हुआ कि if I have started with this A, B, X and Y, first interchange A, B, Y and X. Okay, so this I have done this interchange. Now if I carry out any other interchange in any position, okay, मान लिया आपने A और B को ही चेंज कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कोई भी इंटरचेंज पॉसिबल है. When I do the second interchange here, this interchange, okay, let us take a situation where B and A are interchanged. So here B will come here, then A, then Y and X. These are intact. Okay. Now when I say these are
intact and this interchange. So what is the statement I have given you? If this is compound 1, this is compound 2, and this is 3, that means 1 and 3 are same. 1 and 2 are 1 and 2 and 2 and 3. ठीक है, क्योंकि 2 को अगर हम स्टार्टिंग कंपाउंड माने तो हमने 2 में एक इंटरचेंज किया है, तो इट मींस 2 and 3 and 1 and 2, these are configurational isomers. बच्चे क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैम हाँ जी बेटा। मैम फर्स्ट एंड थर्ड सेम कैसे है? ए और बी की पोजीशन तो चेंज हो गई ना कहाँ पे बेटा? मैम थर्ड कंपाउंड में। हाँ, अच्छा first- सॉरी, हाँ, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू इंटरचेंज। नहीं लिखा तो है मैंने, बी और ए तो लिखा है। और आप मैम ये कह उधर रहे हो तो कि फर्स्ट और 3 सेम कैसे हैं? यस मैम। अच्छा बच्चे देखो, यहाँ पे हम 1 और 3 को पेपर पे देखते हैं। पेपर पे जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो हमें देखने में लग रहा है कि 1 और 3 भी तो सेम डिफरेंट है, 1 और 2 डिफरेंट है। ऐसे इंटरचेंज करके मान लिया मैं x और a को इंटरचेंज कर दूं, y और a को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, b और x को इंटरचेंज कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतने सारे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनेंगे? नहीं। एक कार्बन के, आप सब लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर होते हैं एक कायरल कार्बन के? व्हाट इज द फॉर्मूला? एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है यार ये तो। मैम 2 की पावर n। 2 raised to the power n। इसका मतलब कि अगर आपके कायरल सेंटर एक है, ये 1 कायरल सेंटर है ना, chirality means a carbon which has 4 different groups attached around it। यही पढ़कर आए हो, अभी हम यही chirality की डेफिनेशन लेके चलते हैं। ओके तो इसका मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन n की वैल्यू क्या है? 1। तो स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने बनेंगे? 2 raised to the power n यानी कि 2। इफ आई गो बाय दैट डेफिनेशन कि ए बी को इंटरचेंज कर दिया तो अलग हो गया, बी एक्स को कर दिया तो अलग हो गया, बी वाई को कर दिया तो अलग हो गया, ए एक्स को कर दिया तो अलग हो गया, तो मेरे तो कम से कम इसमें से 10-15 स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, नाउ why do we say that the molecule is able to form only 2 stereoisomers? स्टीरियोआइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है वो क्या है कि अरेंजमेंट स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर डिफरेंट होना चाहिए। यही डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस किया। नाउ व्हेन आई से द अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट, दैट मीन्स कि अब मैं 1 से 2 में जब गए, so if I rotate 1 and 2, I should not be able to get the arrangement which was in 1। इसका क्या मतलब है कि आपने फैन की ब्लेड्स को 3 अलग कलर में कर दिया था, अब मैंने उसको कॉन्फर्मेशनल आइसोमर में रोटेट कर दिया। बच्चे प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो इस बात को, एक ही बात को 100 बार अगली क्लासेस में बार रिपीट नहीं करवाना। सब लोग ध्यान से समझो कि हम ये क्यों कहते हैं कि इसके 2 ही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनेंगे, क्यों नहीं कहते कि ये 20 बन सकते हैं, as somebody has raised this question। So if I color the blades of the fan and I rotate the position, कि फैन को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और बंद कर दिया, इसका मतलब
1 सेकेंड, इसका मतलब मेरे फैन if I have changed the position, if these are the 3 blades, one is red, one is green and the other is say blue. Okay, ये पोजीशन है. अब इस फैन को मैंने रोटेट कर दिया थोड़ा सा, तो नई सिचुएशन क्या आ गई? ब्लू थोड़ा सा इधर हो गया, रेड थोड़ा इधर और ग्रीन थोड़ा सा इधर. थोड़ा सा हमने चेंज की थी पोजीशन. ठीक है, ये मेरा रेड शिफ्ट हो गया, ये मेरा ग्रीन आ गया, ये ब्लू हो गया. तो थोड़ी सी उसके ब्लेड्स की पोजीशन चेंज हो गई. नाउ हेयर अगर मैं इसको और इसको एक दूसरे पे कोइंसाइड करना चाहूं, ओवरलैप करना चाहें, तो क्या करेंगे हम? वापस इसको थोड़ा सा इधर घुमा देंगे. ठीक है ना, इधर घुमा देंगे तो ये वापस इसके जैसा बन जाएगा. समझ में आ रहा है बेटा ये बात? यस पहले मैम. मैंने इसको क्लॉकवाइज किया था, एंटी क्लॉकवाइज किया था, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज कर दूंगी तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा ना. अब एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमने फैन को यहां से नहीं पकड़, यहां से पकड़ के और ये रोटेट नहीं किया. अब रेड को ब्लैक की जगह पे ले आई, इसकी रॉड की जगह पे ले आए, तो क्या हुआ? सिचुएशन क्या हुई? रेड मेरा ऊपर आ गया, रेड मेरा ऊपर आ गया. ठीक है, अब रेड को जब मैंने ऊपर किया तो ये कहां जाएगा? ये वाली रॉड नीचे की तरफ आ गई ब्लू की पोजीशन में. ये यहां पे आपकी रॉड आ गई, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये नीचे आया. ब्लू इस पोजीशन पे आ गया और ग्रीन इधर चला गया. ये फैन की अब नई सिचुएशन हो गई ना, ये वाली सिचुएशन इस वाले के हिसाब से. अब ये सिचुएशन आ गई. नाउ इफ आई वांट टू रिवर्ट बैक, आई कैन ऑलवेज रिवर्ट द पोजीशन एंड गेट माय ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, तो इसका मतलब है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर में आप किसी भी एंगल में घुमा लो, ऊपर नीचे घुमा दो, नीचे का ऊपर कर दो, उसको गोल घुमा दो, ऊपर से घुमा लो, नीचे से घुमा लो, इसको ये रॉड मान लो, ब्लू को रॉड मान लो और यहां से इन तीनों को घुमा लो, ग्रीन को रॉड मान लो और इन तीनों को घुमा लो, तो आप किसी भी को भी पकड़ के बाकी के 3 बॉन्ड्स घुमा सकते हो. ठीक है, जब हम किसी एक को पकड़ के 3 बॉन्ड हम घुमाते हैं तो क्या होता है? हमारे पास जो नई सिचुएशन आती है, वी कैन एक्चुअली रिवर्ट बैक टू द कंडीशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आपने एक इंटरचेंज किया तो आपके पास एक नया मॉलिक्यूल आया, एंड यू विल फाइंड दैट बाय नो मींस यू आर एबल टू कोइंसाइड 1 and 2. आप 1 and 2 को कोइंसाइड नहीं कर सकते, आप कितना भी उसको घुमाते रहो. x को पकड़ के ए बी वाई घुमा लो, a को पकड़ के बी वाई एक्स घुमा लो, y को पकड़ के ए बी एक्स घुमा लो. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा सब लोगों को? यस मैम. Everybody is with me or lost somewhere? मैम बेटा व्हाइट बोर्ड में दिक्कत. क्या हुआ बेटा संजना?
संजना, यस मैम। हाँ जी बेटा, आप क्या कुछ कह रहे हो? मैम वो व्हाइट बोर्ड डिसअपियर हो गया था, अब आ गया। तो इसका मतलब है 2 को आप जितना भी रोटेट करते रहो 3 डायमेंशनली, आप उसको 1 के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है? It means 1 and 2 they cannot superimpose each other. अब दो सभी लोग अपने जो है पेन्स रख दो और अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आओ। जो पीछे वाला पोर्शन है हथेली का, जो पीछे वाला है वो आपको फेस करना चाहिए, और जो आगे का पोर्शन है जहां पे लाइंस होती हैं वो आपका नीचे आपके डेस्क की तरफ। क्या आप अपने दोनों हाथों को कोइंसाइड ओवरलैप कर सकते हो? कंप्लीटली नहीं कर सकते। जैसे ही हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, हमारे अंगूठे अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करने लगते हैं। ओके, तो आप हाथ को जब गोल उल्टा घुमा लो, उल्टा घुमाओ, सीधा घुमाओ, कैसे भी कर लो, आप 1 और 2 को या अपने दोनों हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर, सॉरी, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर सकते। दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ओके, बट व्हेन आई गो फ्रॉम 1 to 3, 1 से जब हम 3 में जाते हैं, पेपर पे तो हमें लगता है कि ये अभी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ओके, बट in reality what happens is I am able to superimpose 1 and 3, ठीक है? रियलिटी में 3 डायमेंशनली अब हमारे पास इतना लिमिटेड है कि आई कैन नॉट शो यू थ्रू मॉडल्स, बट I have 1 and I have done 2 interchanges. The third molecule which I get is superimposable on 1. ठीक है, तो जो सेकंड इंटरचेंज के बाद एक कायरल सेंटर वाली स्पीशीज में जो हमें मिलता है वो आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। थोड़ा इस चीज के बारे में हमने जो जितना अभी डिस्कस किया है, आई गिव यू 5 minutes. Think about it. Whatever we have discussed about the configurational isomers and conformational isomers, because unless and until you have this understanding, it would be very difficult for you to move ahead in the stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री में आगे चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड ऑल्सो थ्रू आउट द सेमेस्टर्स। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ोगे। Okay, so it is very important to have a good understanding of the arrangement of atoms in space. I'm leaving you here. You can think about the conformational and configurational isomers for 5 minutes before you go to your next class. And when we meet again at 1 o'clock, you are most welcome to ask the questions from whatever we have read so far. Okay, so I'm just taking your attendance.